السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آج آپ حضرات کو روشنی کتاب سے سبق نمبر مکمل 3 سبجیکٹو کوشچن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، جو آج کے اس ویڈیو کے اندر اس کتاب کا آخری یعنی 3 سبق ہے، یہ 3 سبق کے بعد یہ کتاب یعنی روشنی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں یعنی پرسوں سے یعنی کل سے آپ کو آبجیکٹیو کوشچن پڑھاؤں گا، یعنی آنے والا ویڈیو جو ہوگا وہ آپ کا آبجیکٹیو ہوگا۔ اس وجہ سے آپ تمام حضرات اس چینل سے جڑے رہیں اور اپنے دوستوں کو اس چینل میں جڑنے کی تلقین کریں، اور میں اس طریقے سے تیاری کرا دوں گا کہ اسٹوڈنٹ اس طریقے کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب چینل میں نہیں ملے گا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آج کے اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں ہے مختصر ترین سوالات، یہ سبق نمبر 3 ہے۔ یہ کیا ہے؟ تیلگو نظم ہے۔ تیلگو نظم کیا ہے؟ انسان، یعنی نظم انسان کیا، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہے ششندر شرما۔ اسٹوڈنٹ، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ سوال نمبر 1 میں ششندر شرما کے بارے میں 5 جملے لکھیے، تو آپ کا سیدھا سا جواب ہوگا کہ مشہور تیلگو شاعر ششندر شرما تیلگو شاعری کی تاریخ میں محتاج تعارف نہیں ہے، یعنی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ کرے شری شرما تیلگو کے عصری ادب میں ایک قد آور شاعر، ایک صاحب نظر، نقاد اور اسکالر کی حیثیت سے اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکے ہیں۔ کرے وہ ایک ذہین اور حساس قلم کار ہیں۔ انہوں نے علوم متداولہ یعنی حاصل کرنے کے بعد عالی ادبیات اور فنون لطیفہ میں گہرا مطالعہ کیا۔ آگے ہے کہ اور کئی اشروں سے ان کا قلم علم و حکمت اور شعر و ادب کے مختلف شعبوں میں متحرک چلا آ رہا ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے قد آور کیا ہے شاعر تھے کہ جنہوں نے ایک عرصہ تک انہوں نے قلم کو اٹھایا اور کیا ہے انہوں نے گہرا مطالعہ کیا۔ کتابوں کو مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے علم و حکمت اور شعر و ادب کے مختلف شعبوں میں کیا ہے بے بہا انہوں نے کیا شہرت حاصل کی۔ اسٹوڈنٹ، آگے سوال نمبر 2 میں کہ تیلگو شاعری کے متعلق اپنی مختصر معلومات ظاہر کیجیے۔ تو اسٹوڈنٹ سیدھا جواب ہوگا کہ جنوبی ہند کی علاقائی زبانوں میں تیلگو زبان کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی اس زبان کی روایت بہت قدیم ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسٹوڈنٹ کہ تیلگو زبان آپ کا آندھرا اور تلنگانہ کے اندر بولی جاتی ہے۔ تیلگو زبان کا تعلق لسانی اعتبار سے ہند آرائی خاندان اسینا سے ہے۔ تیلگو زبان موجودہ آندھرا پردیش صوبہ کی سرکاری زبان ہے۔ آندھرا پردیش، تلنگانہ اور رائل سیما علاقے کے لوگوں کی مادری زبان تیلگو ہے نا۔ آگے ہیں اسٹوڈنٹ کہ تیلگو زبان کا نثری اور شعری سرمایہ بہت وسیع ہے، یعنی بہت لمبے چوڑا ہے۔ ششندر شرما جیسے بڑے شاعروں نے تیلگو کے ادبی سرمایہ میں کافی اضافہ کیا ہے۔ اب دوسری زبان سے تیلگو میں ترجمہ کرنے کی روایت بھی چل پڑی ہے۔ آگے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 میں کہ شامل نصاب نظم انسان میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، مختصراً بیان کیجیے۔ سیدھا جواب ہوگا کہ شامل نصاب نظم انسان میں شاعر نے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ انسان کو اس کی تخلیقی عظمت اور ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نظم میں شاعر ششندر شرما کی ایک فیصلہ کن آواز سنائی دیتی ہے، جن میں زندگی اور انسان کے سنہرے مستقبل کی ایک خوشخبری ہے، اور اس پر عمل کر کے انسان اپنا مستقبل سنوار سکتا ہے نا۔ یعنی اس نظم کے اندر جو ہے ششندر شرما نے کیا عظمت اور ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے کہ آج ہماری قدر کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے نا، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آج اگر ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے تو کیا ہے بجائے ہم کیا ہے کامیابی کے ناکامی کے راہ پر کیا ہے دن بدن ہم گرتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم اپنی قدر و قیمت کو اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی قدر کرے، عزت کرے ہے نا، تو جو ہمارے اندر ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو فرض منصبی کے ساتھ نبھانا ہوگا۔ تو آگے اسٹوڈنٹ سبق نمبر 2 وہ کیا ہے؟ سبق نمبر 2 یعنی ملیالم نظم ہے وہ ملاقات۔
मलयालम जो आपका केरला की ज़बान है, केरला के अंदर बोली जाती है। कह रहे हैं कि जिसके राइटर यानी मुसन्निफ हैं के सचिद आनंद। कह रहे हैं कि मुख्तसर सवालात मा जवाबात। सवाल नंबर 1 है कि के सचिद आनंद की पैदाइश और वतन के बारे में लिखिए। स्टूडेंट सीधा जवाब होगा के सचिद आनंद की पैदाइश सूबा केरला के प्लॉट कस्बा में सन 1946 में ईस्वी में हुई, यानी सूबा केरला को उनके वतन होने का शरफ हासिल है। इन केरला का जो माहौल है ना, मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ का माहौल बहुत ही खुशगवार है, वहाँ अमन शांति का माहौल है, हर एक लोग खुशी खुशी रहते हैं। वहाँ छोटे से छोटे बच्चे, यानी हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा अगर पढ़े लिखे आदमी हैं तो वो कहाँ है? केरला के अंदर है ना। वहाँ हर तरह के क्या है लोग रहने वाले हैं, काले गोरे हर तरह की है ना। वहाँ समंदरी इलाका है, इन्हें बहुत मज़ा है, देखने के काबिल है। वहीं से आपका नज़दीक में क्या आपका कन्याकुमारी है। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि के सचिद आनंद के तालीम और मुलाजिमत के बारे में मुख्तसर लिखिए। तो सीधा जवाब होगा के सचिद आनंद की तालीम ग्रेजुएट तक ज़ूलॉजी ऑनर्स के साथ क्राइस्ट कॉलेज केरला से क्या है हुई, और महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से अंग्रेज़ी में MA किया। एर्नाकुलम ये भी बहुत फेमस जगह है, मैं यहाँ भी जा चुका हूँ। कर इसके बाद कालीकट यूनिवर्सिटी केरला में पससाख्ता अदबी थ्योरी के अनुमान से मकाला पेश करके PhD की डिग्री हासिल की। करेंगे स्टूडेंट ये जो है कालीकट है ना, यहाँ भी मैं जा चुका हूँ, ये मुस्लिम बाहुली इलाका है ना, यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम ही की आबादी है और ये बहुत खूबसूरत जगह है कालीकट। अब तो उसको कोझीकोड से नाम से जाना जाता है। आगे है कि सन 1976 ईस्वी 77 ईस्वी के KKTM कॉलेज प्लॉट में लेक्चरर की हैसियत से मुलाजिमत शुरू की। फिर 1970 में क्राइस्ट कॉलेज कैप अरंजिला कोटा में लेक्चरर के ओहदे पर फाइज हुए। इसी कॉलेज में सन 1979 में प्रोफेसर की हैसियत से तरक्की हुई और सन 1992 तक लेक्चरर के ओहदे पर फाइज हुए। सन 1996 से 2005 तक सातिया एकेडमी नई दिल्ली में सेक्रेटरी के ओहदा पर फाइज रहे। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में कि ज़ेर निसाब नज़्म व मुलाकात के शायर मुतरजिम और ज़बान का नाम लिखिए। तो सीधा जवाब होगा कि ज़ेर निसाब नज़्म व मुलाकात असलन मलयालम ज़बान की है। इस नज़्म के शायर के सचिद आनंद हैं। इस नज़्म का उर्दू तर्जुमा असलम मिर्ज़ा ने किया है। ये भी आपका आएगा कि मलयालम जो ज़बान है और उसमें जो नज़्म है व मुलाकात, इसके तर्जुमा उर्दू किसने किया। तो वहाँ आपका BBI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा स्टूडेंट। वहाँ ऑप्शन होगा मिर्ज़ा असलम, किसी में होगा है ना क्या किसी में होगा हाली, किसी में क्या है गालिब होगा, वगैरह वगैरह। अगर याद होगा तो स्टूडेंट धीरे से आप वहाँ लिख देंगे। आगे है सवाल नंबर 4 में कि मलयालम किस सूबे की ज़बान है और ये सूबा कहाँ वाक़ है। तो सीधा जवाब होगा कि मलयालम जनूबी हिंद की एक इलाकाई ज़बान है। ये सूबा केरला में बोली जाती है और सूबा केरला जनूबी हिंद के मगरबी किनारे पर बहर अरब के साहिल पर वाक़ है। आगे है सवाल नंबर 5 में स्टूडेंट के सचिद आनंद के कितने शेरी मजमूए हैं, पहले मजमूए का नाम बताइए। तो सीधा जवाब होगा के सचिद आनंद के कुल 19 शेरी मजमूए हैं। उनमें से पहली शेरी मजमूए का नाम रंचू सोरेन यानी 5 सूरज है ना। इस मजमूए की इशाअत सन 1970 ईस्वी में हुई। आगे है स्टूडेंट आज के इस वीडियो का आखिरी सबक और इस साल का आखिरी सबक कह लीजिए है ना, यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, क्योंकि ये आखिरी ही सबक चल रहा है, यानी 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उसका। ये क्या है मुख्तसर तरीन सवालात माँ जवाबात है ना। ये है मराठी नज़म दिए, इसके राइटर यानी मुसन्निफ है अरुण कोल्हटकर और उर्दू मुतरजिम यानी तर्जुमा करने वाले हैं सादिक। करेंगे ज़ेर निसाब मराठी शायरी का तर्जुमा किसने किया और किस उन्वान से किया। तो सीधा जवाब होगा कि ज़ेर निसाब मराठी नज़्म के शायर अरुण कोल्हटकर हैं और दिए के उन्वान से इस नज़्म का उर्दू तर्जुमा सादिक ने किया है। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि नज़्म दिए से 4 मिसरे अपनी याद से लिखिए। करें नज़्म दिए के 4 मिसरे दर्ज झैल हैं। कहीं से कुछ सड़ने की बू आ रही थी और मैं जेब
से रुमाल निकालने वाला था कि मेरी छोटी उंगली नीचे गिर गई, उसे मैंने दूसरे हाथ से उठा लिया। आगे है सवाल नंबर 3 में कि तर्जुमा निगारी पर 5 जुमले लिखिए। तो जवाब होगा सीधा सा कि तर्जुमा निगारी एक मुश्किल और दिलचस्प फ़न है। मुश्किल फ़न इसलिए है कि किसी ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करने में तर्जुमा निगारों के लिए दोनों ज़बानों में महारत होना ज़रूरी है। आगे है कि तर्जुमा करने में अल्फाज बदल जाते हैं लेकिन ख़यालात वही रहते हैं, और ख़यालात को दूसरी ज़बान में मुंतकिल करना एक मुश्किल फ़न है। उर्दू में तर्जुमे की रिवायत बहुत पुरानी है। गैर मुल्की ज़बानों का मसलन अंग्रेज़ी, रूसी और तुर्की ज़बानों का अच्छा खासा सरमाया उर्दू में मौजूद है। फिर बाद में हिंदुस्तान के मुतादिद इलाक़ाई ज़बानों की निगारशात भी उर्दू में तर्जुमा की गई है, जिसकी वजह से उर्दू का अदबी सरमाया काफ़ी वाक़ई हो गया है। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 4 में कि मराठी शायरी का ताल्लुक़ किस सूबा से है और यह सूबा हिंदुस्तान के किस हिस्सा में है। तो सीधा जवाब होगा स्टूडेंट जो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी जवाब है, आखिरी आंसर है। कह रहे मराठी शायरी का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के सूबा महाराष्ट्र से है। मराठी सूबा की दूसरी सरकारी ज़बान है। महाराष्ट्र सूबा हिंदुस्तान के जुनूब मगरिब में वाक़ है, जुनूब में और मगरिब में यानी दक्षिण और पश्चिम में। और हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा तिजारती शहर उरूस बिलाद यानी मुंबई सूबा महाराष्ट्र की राजधानी है। तो स्टूडेंट यही तक रहा आज का मेरा और आज का आपका सफ़र स्टूडेंट। इसके बाद आपको इससे बाद जो आने वाले वीडियो हैं वो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव। आप बने रहें, इंशाअल्लाह क्या धुआंधार तैयारी कराएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फिर आप मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।